Hello students, welcome to Carefree Education. So students, today we are going to do the exercise of chapter 5 Skylab, that is the Clockwork Mouse, class 6. So let's begin with pick the correct answer. Okay, the only indication to prove the lifelike mouse was not real because the round hole in its left side. Not real was the round hole in its left side. Next one. The clockwork mouse had remained forgotten at the bottom of the toy cupboard ever since Jimmy had become bored with it and had also lost its key. The clockwork mouse in the rubbish dump managed to look as good as new because the rain that afternoon had washed away all the dust and dirt of it. Then comes the fourth one. The woodcutter who had found the clockwork mouse did not want it as he had no kids, क्योंकि उनके पास कोई बच्चे नहीं थे. Now coming to the next, that is true false. Jimmy had received the clockwork mouse on his 6th birthday. False. The clockwork mouse escaped being squashed by the crusher inside the lorry as it was small. True. Third one. Years later, the clockwork mouse was remembered when its little gold key was found. False. Jimmy was not in the school on the day the logs ordered by his father were to arrive as he was revising at home. True. Being left in the cupboard has made the clockwork mouse age a lot. False. Okay. Then coming to the next one, that is playing with words. Playing with words F. What we are supposed to do in this? Given below are the words taken from the lesson. Choose the correct word to fill in the blanks in the given sentences. आपको इस बॉक्स में से जो ये वर्ड्स चैप्टर में दिए हुए हैं इसको क्या करना है, इन सेंटेंसेस में फिट करना है. The surprise birthday gift was a box of assorted cupcakes. Roma accidentally placed a heavy bag on a packet of biscuit and squashed them. The thief scuttled off when he was a policeman. Simar instantly recognized Zafar when he saw him after 8 years. The complicated mechanism of the toy was beyond repair. The gate was so rusty that he could not open it. Next question, beta, we have to make the sentences of the words given. Winding का मतलब क्या होता है, कुछ एंड कर देना. एंड मतलब टेढ़ा मेढ़ा लेकर के जाना. There is a very long winding path. Course, she is taking a chemistry course. Scavenging, the flood that has left people scavenging for food. Swooping, the police swooped in and captured the criminals. Nibbled का मैं सेंटेंस आपको लिख देती हूँ. We nibbled cheese and crackers. Hope you understood it. बेटा क्रैकर्स में यहाँ लिख देती हूँ स्पेलिंग. We nibbled cheese and crackers. Okay, coming to the next question. That is, you have to add suffix और prefix. बेटा अब suffix और prefix होते क्या हैं, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ. prefix ऐसे words होते हैं जो word के आगे लगाने वाले words होते हैं, जैसे un हो गया और कैसे impossible का im हो गया. तो ये सारे क्या हैं, प्रीफिक्स. प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड के पहले लगाए जाते हैं और सफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ड्स के पीछे लगाए जाते हैं और दोनों को मिला करके अफिक्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है, अफिक्स. मतलब यहाँ पे अफिक्स का मतलब क्या होगा, किसी वर्ड में आपको प्रीफिक्स लगाना है, किसी वर्ड में आपको सफिक्स लगाना है या शायद दोनों ही लगाने हैं. कंप्लीट द कॉलम बी बाय एडिंग अफिक्स टू द वर्ड्स गिवन इन द बिलो. मतलब कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही लगाने हैं वर्ड्स में. अब पैक का क्या हो जाएगा, अनपैक. अनपैक के मतलब प्रीफिक्स हो गया. अनपैकिंग प्रीफिक्स और सफिक्स. आईएनजी सफिक्स हो गया और अन क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया. ईडी क्या हो गया, सफिक्स हो गया. अन क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया. आईएनजी सफिक्स हो गया
और इसमें ed क्या हो गया, सफिक्स हो गया। समझ में आ गया सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। वैसे ये वर्ड सारे वर्ड्स के हैं, आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंसेस, राइट द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और द पजेसिव। इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। कौन से वर्ड्स इसमें सब्जेक्ट है, कौन से ऑब्जेक्ट है और कौन से पजेसिव है, लेकिन सिर्फ प्रोनाउन। तो सारे प्रोनाउंस हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। दे में दे हो गया प्रोनाउन, आई प्रोनाउन हो गया, उसके बाद यहाँ पे हर्स प्रोनाउन हो गया, इसमें आई, माई, हिज, ही और दे, ये सारे हमारे पास प्रोनाउन है। अब कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा पॉजिटिव है, इसमें वो आइडेंटिफाई करना है। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, और इसमें जो हर है ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें हर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। बेटा आप पूरी स्पेलिंग से आपकी क्वेश्चंस में लिखी हुई है, आप वो देख सकते हैं। आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, माई इसमें पॉजिटिव हो गया, और हिज भी इसमें पॉजिटिव हो गया। ही इसमें सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट है, और दे इसमें सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐड करने। ही प्रैक्टिस द सम्स हिमसेल्फ, वी हैव ट्रीटेड अवरसेल्व्स टू द फूड सर्व्ड ऑन द टेबल, द चिल्ड्रन क्लीन द क्लास कबर्ड बाय देमसेल्व्स, the dog slipped on the carpet and hurt itself, the new student introduced themselves to the class. Okay, then next, अब इसमें क्या करना है आपको, करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। जो आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट चूज करना है जो इसमें फिट हो जाए। अवर फुटबॉल टीम वॉज वेरी सक्सेसफुल लास्ट ईयर, इट वन एवरी मैच। बेटा टीम पूरी एक है तो इसीलिए उसको क्या होगा, इट हो गया, और टीम के मेंबर्स अलग अलग से होते तो हम दे यूज कर लेते, तो उसको एज ए सिंगुलरी यूज किया गया। अ सीनियर सिटीजन मस्ट विजिट देयर डॉक्टर वंस अ ईयर, देयर डॉक्टर अपना डॉक्टर, शी तो यहाँ आ ही नहीं सकता। द बोर्ड मेंबर रिफ्यूज टू पुट देयर, बोर्ड मेंबर्स, बेटा ये प्लूरल फॉर्म हो गया तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर। इफ एनी स्टूडेंट नीड्स द बुक देन दे शुड कॉल मी। If someone has been unwell, they may take the test later. Each of these girls had her books covered with brown paper. If you have any doubt, please do write in the comment section.